Sir, co-host right has been given to you. You may proceed. Okay, thank you, sir. So, good morning, guys. I hope the screen is visible to you. Good morning, Yes, sir. sir. Good morning. Good morning. Okay, so we were discussing about the minerals, distribution of minerals in India, and for that we have finished with ferrous and non-ferrous. Ferrous and now let's come to uh, non-metallic minerals. So we have discussed with metallic, that is ferrous and non-ferrous. Now, non-metallic minerals. And here, I mean, whatever the minerals we have discussed, whether it is ferrous or non-ferrous, that was about the major metallic minerals. Now let's see the major non-metallic minerals. So among the non-metallic minerals which are produced in India, mica is the important one. Okay, it is mica. And other minerals which are extracted for local consumptions like mica और हो गया limestone, then dolomite, phosphate. Okay, तो नॉन मेटेलिक का मतलब क्या हो गया? मिनरल्स दैट डोंट कंटेंट मेटल्स. ओके, दैट डोंट कंटेंट मेटल्स आर नॉन मेटेलिक. इसमें मेटल्स नहीं है. एंड इंडिया बेसिकली इफ यू से इंडिया इज पुअरली endowed with non-ferrous metallic. So, well, I mean, if you see that mica, तो माइका को देखते हैं. तो माइका का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. ओके, एंड mica is mainly produced in झारखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, then राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड एमपी. Okay, so these are the sequence of production also. I mean, I'm not writing only the name of states, but in the sequence you will find the mica in this way. Okay, so this is sequence of production. So maximum production of mica is in Jharkhand. तो ये वाला याद रखना कि इसका कहाँ कहाँ पे होता है. एंड सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यू नो दैट माइका. और उसके बाद फिर और भी कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. फॉर एग्जांपल इफ यू सी दैट सल्फेट, फॉस्फेट, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नॉन मेटेलिक में, बट फिर भी हम देख लेते हैं उसको. देखो,
एक मिनट, एक इधर हैंग कर रहा है पेन। Okay. So mica, if you see the mica is a vital non-metallic mineral. किधर मिलता है ये? igneous and metamorphic rock में. Okay, it is found in igneous and metamorphic rocks. So अगर igneous और metamorphic rocks के बारे में बोला जाए तो ये कहाँ पर मिलता है? प्लाटू रीजन में. It means mica is found in plateau region. Okay. और माइका का मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया बताया था अभी तुमको. वेल, नेक्स्ट इज अबाउट जिप्सम. एक और डायमंड ले लेते हैं. डायमंड है ना, डायमंड भी नहीं हुआ है तुम्हारा. डायमंड क्या बोलते हैं? डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस. इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस and primarily extracted in MP. Mind it, diamond is primarily extracted in MP. And if you see the key diamond mines, then Panna is a place in MP and Satna district of MP. Okay, these are the two districts where you can find ample of diamond in pure form. Okay, additional diamond mining regions include Raichur and Gulbarga in Karnataka. Raichur and Gulbarga in Karnataka, and then Anantpur and Krishna Basin. अनंतपुर एंड कृष्णा रिवर है ना, कृष्णा बेसिन किधर है? आंध्र प्रदेश में. तो एपी में ये अनंतपुर एंड कृष्णा बेसिन, रायचूर एंड गुलबर्गा इन कर्नाटका, पन्ना एंड सतना डिस्ट्रिक्ट इन एमपी. ओके, तो ये डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन है. देन जिप्सम. ये सब छोटा छोटा है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी जान लो. जिप्सम का मैक्सिमम यूज किधर होता है? फर्टिलाइजर वगैरह. फर्टिलाइजर, सीमेंट, सल्फर प्रोडक्शन. ओके, and who is the largest producer of gypsum? Rajasthan. See, because when it comes to non-metals like gypsum or cement, है ना, तो these industries are found in MP, राजस्थान ऐसे एरिया में होगा. एग्जैक्टली ये पूरा एमपी का भी नॉर्थ में होता है, तो कोर में नहीं होगा. तो दीज आर द minerals which are not found in the core of the peninsula plateau. Okay. Rajasthan is largest producer of gypsum and 90% of India's production coming from Rajasthan. राजस्थान में एक प्लेस है दैट इज हनुमानगढ़. तो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग जिप्सम प्रोड्यूसिंग रीजन. उसके बाद छोटा छोटा रीजन थोड़ा सा है, डोडा इन जे एंड के. डोडा इन जे एंड के एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात. देन gypsum, after gypsum there is a limestone. लाइमस्टोन भी हम लोग नहीं देखे थे, देख लेते हैं. लाइमस्टोन predominantly produced in MP, mind it. Then Rajasthan, then AP, then Gujarat, then Chhattisgarh, then Tamil Nadu. Okay, and limestone is crucial for cement industry. Crucial, very crucial mineral for cement industry.
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री एज वेल, तीनों में इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी यूरेनियम। यूरेनियम को एनर्जी सोर्स में देख लेंगे अभी। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, मिनरल्स हैं। तो देखो, अभी मिनरल्स में हम लोग जो क्लासिफाई किए, मेटेलिक, फिर मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस, ठीक है, फिर नॉन मेटेलिक में अदर मिनरल्स प्लस एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी वाला जो है उसको अलग से हम देखेंगे एनर्जी में ही, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखना तुम्हारा मेंस के लिए थोड़ा सा और भी एक तो हो गया तुम्हारा, फर्स्ट इज योर मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द लोकेशन। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, का मतलब ही होता है लोकेशन। तो मैप में आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। अगर रट भी नहीं पाओगे तो कोई इशू नहीं है, यू मस्ट हैव आइडिया कि कहाँ पर कौन सा है। और मेजर मिनरल्स का तुमको सिर्फ आइडिया नहीं होना चाहिए, मेजर का लोकेशन भी पता होना चाहिए, मेजर का। जो जैसे आयरन स्टील के लिए है, फेरस है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है ना, बॉक्साइट है, वो एल्यूमिनियम के लिए हो ही गया बॉक्साइट, गोल्ड है। सो इनके लिए थोड़ा सा देख लेना लोकेशन, बाकी का थोड़ा आइडिया भी रहेगा तो चलेगा। इनफैक्ट अगर मेजर मिनरल्स का लोकेशन भी नहीं याद हो रहा है तो कम से कम स्टेट वगैरह याद रख लो कि कौन सा स्टेट में है। स्टेट हो जाएगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट किसका? माइनिंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, बताया था ना कल, जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट होगा उसको करना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, ये जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज ये सब है, कॉपर का, बॉक्साइट का, माइका, ये सब थोड़ा गोल्ड वोल्ड ये सब देख के फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा ये देख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, स्टेट्स और प्रोडक्शन। यस, प्रोडक्शन भी देख लेना कितना किसका ज्यादा है किस स्टेट में। टॉप 3 स्टेट देख लिया, हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस टॉप 3 स्टेट्स का प्रोडक्शन याद रखना है। और मैप में इसको ड्रॉ करके ट्राई टू ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन इन द मैप को। ब्लैंक मैप में कोशिश करो, और आई एम टेलिंग यू तभी याद होगा। इसको याद करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू राइट इन ब्लैंक मैप, यू हैव टू लोकेट ऑल दीज मिनरल्स इन ब्लैंक मैप। ओके, इसके बाद मेंस के लिए क्या ध्यान रखना है, व्हाट यू नीड टू, आई मीन कीप इन योर माइंड, दैट इज कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि खत्म हो रहा है ना ये सब धीरे धीरे, तो इसका कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू गो थ्रू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज because they are depleting rapidly. Why depleting rapidly? Due to increase in population. So there is a much more demand than previous I mean time. तो अभी बहुत ज्यादा है इसका, और रैपिडली डिमांड बढ़ रहा है। बट मिनरल्स आर लिमिटेड, लिमिटेड इन क्वांटिटी, एंड दे आर इरिप्लेसेबल। इरिप्लेसेबल मीन्स हम लोग इसको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कंजर्वेशन में तुमको ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंजर्व कैसे करें। तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी है कंजर्वेशन का। फॉर एग्जांपल इन पॉइंट्स आई कैन टेल यू, लाइक कुछ रिसाइकलिंग होता है ना, स्क्रैप मेटल्स का। रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप मेटल्स, ये सब इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा पुअर ग्रेड ओर का भी यूज करना पड़ेगा, बहुत हाई ग्रेड यूज करने से खत्म हो जाएगा। पुअर वाला कोई नहीं यूज करता है, यूज ऑफ पुअर ग्रेड ओर्स। promoting non-conventional source of energy, promoting non-conventional source of energy, ऐसे भी हम लोग बचा सकते हैं, है ना।
providing training for efficient mineral conservation. ओके, तो ये सब पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, इसको डिटेल में लिख लेना मेंस में, इफ दे आर आस्किंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो अगर ये क्वेश्चन होता है ना मेंस में, तो तुमको ये भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि मिनरल क्यों कंजर्व करना पड़ रहा है, व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, क्यों हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, population is increasing, then demand is increasing, and there's a, I mean, shortage in minerals, they are irreplaceable। ठीक है, ये सब बता के फिर तुम उसका कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर दोगे, तो ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट्स। ओके, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। ओके, तो इस एक्ट को भी ध्यान में रखना है तुमको, इसको पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था 1957 में, है ना। क्यों? टू रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मिनरल्स का, टू रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि पहले क्या था ना, कोई भी माइनिंग कर लेता था, आज के टाइम में हर कोई माइनिंग नहीं कर सकता, जब तक उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं हो माइनिंग पॉसिबल नहीं है। और एक्ट वाज अगेन अमेंडेड, कब अमेंडमेंट हुआ था इसका, 2015 एंड 16 में इसका अमेंडमेंट हुआ। क्यों? फॉर द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द माइनिंग रेगुलेशन। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि किसी को भी माइनिंग करनी है तो उसको माइनिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर माइनिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप माइनिंग नहीं कर सकते, है ना। तो और जो छोटा छोटा मिनरल्स है, माइनर मिनरल्स, है ना, जैसे रिवर सैंड वगैरह, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में आता है, वही रेगुलेट करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल रिवर सैंड, नदी से निकालता है ना सब सैंड वगैरह, वो भी तो मिनरल है। तो उसके बाद ये सब जो एक्ट है तुम्हारा, इसमें ध्यान रखना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अमेंडमेंट में क्या हुआ, तो इसमें क्या किया देखो, इसमें नॉन कोल मिनरल्स को एक्सप्लोर और प्रमोट करने का बात किया, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस को एक्सटेंड किया, लाइसेंस वैलिडिटी हैज, पॉइंट लिख लो कुछ छोटा छोटा इसमें एक्ट के बारे में, सो दैट तुमको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है बहुत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, क्या इस एक्ट के तहत क्या होता है, व्हाट इट एक्ट डज, basically it outlines the condition for obtaining a mineral license in India। ठीक है, बिना इस लाइसेंस के माइनिंग नहीं हो सकता है। ओके, और उसके बाद देखो, जो भी है माइनिंग लाइसेंस और एक्सट्रैक्शन करना है तो परमिशन लेना है, एक मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF, है ना। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसका परमिशन लेना पड़ता है नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, फॉर मेजर मिनरल्स। स्मॉल छोटा छोटा माइनर मिनरल्स का तो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, बट मेजर मिनरल्स के लिए परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट देती है। ठीक है, और कैसे लाइसेंस मिलता है पता है, दैट इज ऑक्शन बेस्ड, ऑक्शन कराया जाता है, ऑक्शन बेस्ड सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ माइनिंग। तो तुम्हें माइनिंग वाला एरिया अगर चाहिए तो तुम्हें
ठीक है, इसके लिए ऑक्शन में जाना पड़ेगा। वेल, इसके बाद एक और पॉलिसी है, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, इसको भी देख लेना एक बार। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। ओके, ये भी माइनिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बताया गया है, उसको कैसे बूस्ट किया जाए, है ना। तो ये सब है, थोड़ा सा पॉलिसी देख लेना। उसके बाद ऐसे इसको इतना ही लिख लो, टू बूस्ट द माइनिंग सेक्टर। थोड़ा सा थीम तो याद रहना चाहिए तुम्हें, है ना। एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसमें इसी के बाद से प्राइवेट सेक्टर का भी रोल माइनिंग में बढ़ गया है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर माइनिंग करता था, अब प्राइवेट पार्टी भी माइनिंग करने लगा है, उसको भी लाइसेंस मिलने लगा है। फिर मर्जर एक्विजिशन का भी सपोर्ट मिलता है, मर्जर एंड एक्विजिशंस इन द माइनिंग इंडस्ट्री। तो ये सब कुछ फीचर्स है नेशनल मिनरल पॉलिसी के। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा मिनरल्स के बारे में। एक और बस लिख लो बिल है लास्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स। तो हो ही गया ना, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल जो था पहला वाला 1957, इसी को पहले तुम्हें बताया था ना, 1957। अब ये अमेंडमेंट होके फिर एक आया है 2021, तो इसको लिख लो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। चलो मैं लिख ही देता हूँ सो दैट तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो एकदम लेटेस्ट जो अभी है देखो, लेटेस्ट वाला है माइंस एंड मिनरल्स, यही नाम है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ओके, ये ध्यान में रखना। इसका जो की प्रोविजन है दैट इज रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बस एक लाइन में की प्रोविजन लिख लो, बाकी रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंड यूज ऑफ मिनरल्स, एंड यूज ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा माइन को सेल करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है, ऑक्शन क्रिएट करना, ये सब थोड़ा सा इस बिल का प्रोविजंस है। अलाउिंग कैप्टिव माइंस टू सेल अप टू 50% ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन, कैप्टिव माइंस को भी सेल करना, यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। कैप्टिव माइंस अलाउड टू सेल अप टू 50% ऑफ देयर एनुअल प्रोडक्शन। ठीक है, बस इतना ही लिख लो। अब चलो एनर्जी रिसोर्स करते हैं, एनुअल प्रोडक्शन। So this is all about minerals of India, along with the policies, conservation, distribution, location. Got it? Yes, sir. Okay. Now come to the energy resources. Next. तो मिनरल रिसोर्सेस में हम लोग जो दो पार्ट पढ़े थे, नॉन मेटालिक में एक एनर्जी रिसोर्स भी था। तो फॉर एग्जांपल कोल पेट्रोलियम तो मिनरल भी है और एनर्जी रिसोर्स भी है। मतलब जिन रिसोर्सेस का यूज हम मशीनों को चलाने में करते हैं, रिसोर्सेस विच आर यूज टू रन द मशीन्स, है ना, run the machines in industries,
इन द इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहां भी यूज करते हैं इसका, और एग्रीकल्चर में भी करते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी में। ठीक है, तो जिस रिसोर्स का यूज हम लोग यहाँ करते हैं उसको हम लोग एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। और बहुत पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेस इन इंडिया, है ना, ह्यूज पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर देखो, क्योंकि अगर तुम देखते हो ना, इंडिया का फिजियोग्राफिक रीजन जो है, माउंटेन भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, इसलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वाई पॉसिबिलिटी इज मोर ड्यू टू डाइवर्स फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक रीजन में क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट, घाट, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, है ना। तो पढ़ा है ना इंडिया का फर्स्ट चैप्टर जो है, डाइवर्स फिजियोग्राफिक यस सर। रीजन्स की। हाँ, डाइवर्स फिजियोग्राफिक रीजन्स का वजह से यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज का क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। एक्सप्लोर कर सकते हैं, पोटेंशियल तो है, लेकिन एक्सप्लोर करना वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एक क्या हो गया, तो फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। ये एक कन्वेंशनल भी होता है, सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल। So conventional is non-renewable and non-conventional is renewable. Okay. Conventional में क्या क्या आता है? For example, you know that coal, wood, petroleum, natural gas. Okay. उसके बाद इधर तो बहुत आता है रिन्यूएबल में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, थर्मल, बायोगैस। ओके, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वैसे थोड़ा सा इस दोनों में आता है कभी कभार, न्यूक्लियर, देन जियोथर्मल। ठीक है, टाइडल एनर्जी हो ही गया, टाइडल भी लिख लो, एक टाइडल एनर्जी। तो दे आर द नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। लेट्स सी अबाउट कोल। सो कोल बेसिकली कैसे बनता है? फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। बेसिकली इट इज मेकिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन का ही समझो ये सॉलिड पार्ट है, जिसको हम रॉक्स के फॉर्म में देखते हैं। कोल हमें हीट एंड लाइट दोनों प्रोवाइड करता है, कोल की वजह से, है ना। तो दोनों के लिए हम लोग को फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल क्या होता है? हीट और लाइट का फ्यूल क्या है? दैट इज द कोल। और कोल का जो क्वालिटी है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट, के अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है ना। और इस बेस पे उसको एंथ्रासाइट, बिटुमिनस,
lignite on the basis of carbon content, lignite एंड पीट। तो इस तरह से मैक्सिमम कार्बन कंटेंट किसमें होगा? 80 to 90% कार्बन कंटेंट इज इन एंथ्रासाइट। बिटुमिनस में थोड़ा कम होता है, दैट इज 60 to 80 कार्बन कंटेंट। लिग्नाइट में और भी कम होगा, 40 to 60। और पीट में लेस देन 40। ठीक है, इस तरह से कार्बन कंटेंट। तो कोल, कोल क्या होता है? कोल को जब बर्न करते हैं तो इससे स्टीम निकलता है, गैसेस निकलता है, उसका ही हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। कोयला को जलाना पड़ेगा ना, जब तक जलाएंगे नहीं उसका एनर्जी कैसे निकले, उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? कोल को डायरेक्ट यूज नहीं करते। तो जो इसमें जो गैसेस स्टीम है ना कोयला का, उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे कोक मिलता है, इसको जलाने के बाद कोक प्रोड्यूस होता है। कोक भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनर्जी रिसोर्स का। और पूरा जो कोयला का डिमांड सबसे ज्यादा है हमारे इंडस्ट्रीज में, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। 67% जो कोल है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक। और सॉरी, 67% नहीं, पूरे कंट्री का जो एनर्जी या फ्यूल जो इंडस्ट्री के चाहिए, वो 67% कोल से आता है। तो पूरे कंट्री के इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल 67% कहाँ से आता है? कोल से। ओके। मैक्सिमम रिजर्व कोल का किधर है, किस स्टेट में? अभी झारखंड। झारखंड। या और अगर वैसे सिर्फ प्लेस बोला जाए ना, ओनली प्लेस, तो एक प्लेस है रानीगंज। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रिसोर्स है। एक टाइम में मैक्सिमम, तो डेट का पता नहीं, बट एक टाइम में मैक्सिमम रिजर्व था रानीगंज में। रानीगंज प्लेस इन वेस्ट बंगाल। झारखंड में क्या है, मैक्सिमम रिजर्व है कोल का। एंड सेकंड मैक्सिमम रिजर्व है उड़ीसा। सेकंड मैक्सिमम रिजर्व उड़ीसा। ध्यान रखना। और के बाद जो सबसे ज्यादा, मतलब अगर कोल इसमें होता है हमारी कंट्री में, झारखंड उड़ीसा में, इसको बोलते हैं गोंडवाना कोल। ठीक है, गोंडवाना कोल इसका नाम है, क्योंकि तीन दो तरह के कोल हमारी कंट्री में, गोंडवाना कोल और एक टर्शरी कोल है। टर्शरी कोल बहुत कम मिलता है। मैक्सिमम कोल 98% कोल कम्स फ्रॉम गोंडवाना इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा गोंडवाना से। टर्शरी कोल जो है, टर्शरी का एग्जाम्पल है लिग्नाइट। ओके, टर्शरी का एग्जाम्पल है लिग्नाइट। और लिग्नाइट क्या है ये, मतलब टर्शरी कोल का एग्जाम्पल है मेनली ये तमिलनाडु और थोड़ा बहुत जेएंडके में भी मिलेगा। तमिलनाडु एंड जेएंडके में भी तुमको थोड़ा बहुत मिल जाता है। ठीक, किसका? लिग्नाइट इन टर्शरी वाला। और कोल का प्रोडक्शन जो है वो क्या किया है, मेनली कहते हैं ना कि सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर, कौन सा, एक मिनट, कोल का, कोल प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर में है। उसमें क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड है ना। एक कोल इंडिया लिमिटेड के पास है इसका प्रोडक्शन का राइट। और दूसरा एक सिंगरेनी, कोलरीज, कोलरीज ऐसा कुछ नाम है, कोलरीज कंपनी लिमिटेड, इनके पास प्रोडक्शन का राइट है ना। 90% प्रोडक्शन का राइट इसके पास, कोल इंडिया लिमिटेड के पास। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 90% राइट्स है प्रोडक्शन का, और बाकी के पास 10%।
है ना। तो कोल इंडिया लिमिटेड में पता है 7 इसका यूनिट है जो इससे काम करता है, अकेले नहीं कर पाएगा ना ये, तो 7 यूनिट्स मिलके कोल इंडिया को हेल्प करते हैं। वर्ल्ड में अगर कोयला का प्रोडक्शन का देखा जाए तो इंडिया का 3rd प्लेस है वर्ल्ड में। ठीक है। और कुल मिला के अमेरिका और चाइना पहले 2nd रैंक पे है। और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब जो, सॉरी, ये इंडिया में जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। और पूरे वर्ल्ड का 7.2% प्रोडक्शन इंडिया में होता है कोल का। यानी तुम सोचो 3rd है तो 4th और 5th का तो कोई नाम ही नहीं है ना। इंडिया 3rd है, चाइना सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से, देन यूएसए, फिर इंडिया है, तो 7.2% है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। सबसे पहला जो इंडिया में 1774 में रानीगंज में कोल प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। कोल का प्रोडक्शन रानीगंज में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और कहते हैं ना कि जो कोयला है अभी भी जो है पब्लिक सेक्टर में इसका ज्यादा डोमिनेशन है, प्राइवेट सेक्टर में कम है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर पूछो कि माइंस किधर है, तो सबसे ज्यादा माइंस भी झारखंड में। कोल माइंस मैक्सिमम इन झारखंड। सेकंड वेस्ट बंगाल में है, एंड देन एमपी में। सेकंड मैक्सिमम एरिया वेस्ट बंगाल, एंड थर्ड इज एमपी, जहां से कोल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ओके। तो कौन कौन सा रीजन से अभी बताया मैंने गोंडवाना कोल मिलता है। मेजर कौन कौन सा था, झारखंड। ठीक है। देन उड़ीसा। और लिख लो उसके बाद वेस्ट बंगाल, अभी तुमने लिखा ना थोड़ा पहले, देन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। यहाँ से भी कोल निकाला जाता है, मेनली फ्रॉम रिवर वैलीज। कहाँ से निकालते हैं, रिवर वैली से। तो मेनली जो कोयला है कहीं भी देखो तो रिवर वैली से ही निकाला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन से कोल। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोलियम का देखो, पेट्रोलियम इज अ कंपाउंड, बेसिकली इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है। का कंपाउंड है। ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है पेट्रोलियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में भी मिलता है। तो थोड़ा मैप में देख ले तुम्हारा कोल का रीजन, सो दैट तुम्हारे दिमाग में थोड़ा तो आएगा कुछ के कौन कौन सा रीजन है। कोल फील्ड में देखो, ये इस तरह का निशान है ना, देखो थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का है कोल फील्ड्स। कोल फील्ड से देखो ये सब है, दिख रहा है तुमको, यहाँ पे देखो बहुत सारा है। झारखंड उड़ीसा में यू कैन सी बहुत है। सो यू कैन सी द मैक्सिमम कोल फील्ड्स आर लोकेटिंग इन दिस रीजन। ज्यादा झारखंड, थोड़ा बहुत इधर वेस्ट बंगाल में भी है थोड़ा बहुत, इधर नॉर्थ ईस्ट का जो गारो खासी जैन के शिलोंग वगैरह में भी थोड़ा है, मेघालय में। और कहीं बनाया नहीं है वैसे, मतलब एक इधर देखो राजस्थान में भी दिखा रहा है इस साइड में। और तो इधर हाँ एमपी में भी दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ एमपी, यहाँ देखो इसमें भी है ट्रायंगल जो है ये। दीज आर द कोल फील्ड्स। You see the
कोल फील्ड्स, देन ऑयल फील्ड, देखो पेट्रोलियम ऑयल फील्ड, ये ग्रीन वाला ना, ये देखो ऑयल फील्ड, गुजरात, अंकलेश्वर, पूरा ये मुंबई महाराष्ट्र, इधर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, असम वगैरह, इधर देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, अरुणाचल का पार्ट से थोड़ा सा आ जा रहा है ना, थोड़ा तो है इधर भी, अरुणाचल में भी, यूपी में। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये सब ऑयल फील्ड्स हैं। अभी बताता हूँ तुम्हें ऑयल फील्ड कैसे होता है, कैसे निकलता है। ऑयल फील्ड जहाँ होता है वहां पर गैस फील्ड्स का भी प्रोबेबिलिटी रहता है। गैस फील्ड देखो ये रेड कलर का है, तो गुजरात में ऑयल फील्ड के साथ है, राजस्थान में भी गैस फील्ड है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी गैस फील्ड है ना। इधर देखो नॉर्थ ईस्ट, इधर त्रिपुरा वगैरह में भी गैस फील्ड है, मिजोरम त्रिपुरा ये सब में भी। तो ऑयल फील्ड और गैस फील्ड, कोस्टल रीजन में भी गैस फील्ड मिलता है। तो देखो कोस्टल रीजन में है ना, यहाँ पे देखो ऑयल और गैस दोनों यहाँ पे। हमारे इंडिया का मालाबार कोस्ट, कृष्णा गोदावरी बेसिन इधर है पूरा, बहुत है इधर। कोल और कोल भी है थोड़ा, और गैस भी है, और ऑयल भी है ना इधर पे, यहाँ देखो। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि किधर किधर है, थोड़ा सा लोकेशन समझना है। ओके, नेक्स्ट इज नाउ, सो पेट्रोलियम, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इट इज फाउंड इन सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। पेट्रोलियम को जब रिफाइनरी में, पेट्रोलियम पता है कहाँ से मिलता है? ये बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पेट्रोलियम इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसा होता है? जैसे ओशन है, ओशन का एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे रिवर्स क्या करते हैं? रिवर्स आर ड्रॉपिंग देयर सेडिमेंट्स, और वो सेडिमेंट जब ड्रॉप करता है, सपोज ये एक लेयर हो गया सेडिमेंट का, फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है, फिश वगैरह, वो यहाँ सपोज फिश हैज बीन डाइड, उसके ऊपर फिर सेडिमेंट का एक लेयर आ गया, ठीक, तो सेडिमेंट का एक और लेयर आ गया, फिश तो मर गया, उसमें दब गया, और उसका ऑयल बन गया बहुत टाइम के बाद। अब ये अंदर में ओशन के अंदर है, तो ड्रिलिंग करते हैं ऐसे करके, ड्रिलिंग करके इस ऑयल का जो लेयर है, जहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स का डेड बॉडी है, उसी का ऑयल निकला है, वहां तक ड्रिलिंग करके पाइप्स के थ्रू, ये जो क्रूड ऑयल है यहाँ से जो निकलेगा, कौन सा निकलेगा? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ओके। एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू रिफाइनरीज। क्रूड ऑयल से काम नहीं होता है, उसको हम लोग, उसके लिए क्या चाहिए? रिफाइनरीज चाहिए, और दिस इज रिफाइनरी। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को ले जाते हैं, देन हम लोग पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। व्हाट वी आर एक्सट्रैक्टिंग? पेट्रोलियम। तो यहाँ पर पेट्रोलियम से तुमको, जब पेट्रोलियम रिफाइन करके, यानी रिफाइन करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स है ना पेट्रोलियम का, जिसको वेस्ट भी मानते हैं, तो उससे क्या निकलता है? केरोसिन, डीजल, गैसोलीन, वैक्स, ये सब मिलेगा, ठीक है। अगर इसका सब मतलब, इसका कोई बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत काम का है। तुम देखो कुछ ना कुछ यूज कर ही लेते हैं, वेस्ट नहीं जाता है। दैट्स व्हाई इट इज, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। ये बहुत वैल्यूबल है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, है ना। और ये कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। और इंडिया में ये टर्शरी एज के रॉक्स में मिलेगा, क्योंकि टर्शरी एज में जो ओशन में ऑर्गेनिजम्स थे, काफी उनका डेथ हुआ था ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट का मूवमेंट की वजह से
बहुत सारा मरीन ऑर्गेनिज्म मर गया था। किस एज में प्लेट का मूवमेंट हुआ? तो हिमालय बना था टर्शरी एज में। तो इसलिए टर्शरी एज का जो रॉक्स है, उस रॉक्स में पेट्रोलियम मिलता है। और वो ट्रैप्स में मिलेगा, फॉल्ट ट्रैप्स में, जैसे ऐसे लेयर्स होता है ना, इसके अंदर जो ट्रैप्ड फॉर्म में पेट्रोलियम होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फाउंड इन द लेयर्स, इसमें ये ट्रैप्ड होता है। एक मिनट रुको, ठंड लग रहा है, थोड़ा स्वेटर डाल लेता हूँ। ठंडा है, मैं ऐसे ही नहा के बैठ गया था। एक मिनट रुको। अरे स्वेटर। हम्म। टी शर्ट से काम नहीं चलता ना आज के टाइम में। देखो, ट्रैप्ड जो ये है, दैट इज ऑयल ट्रैप्ड होता है। क्यों? ऑयल लाइट है, ऑयल के ऊपर क्या होगा? ऑयल लाइट है, ऑयल के नीचे मिलेगा तुमको वाटर। सॉरी, पहले पेट्रोल, देन वाटर, और सबसे ऊपर मिलेगा गैस। गैस का सबसे ऊपर, गैस सबसे लाइट होता है ना। तो इस तरह से ये ट्रैप रहता है, और इसमें ड्रिलिंग करके इसको निकालते हैं। ओएनजीसी वगैरह ये सब काम करता है इसमें। तो इंडिया में अगर तुमसे पूछे कि पॉसिबिलिटी कहाँ है, टर्शरी रॉक्स में और मेसोजोइक रॉक्स, से बोलना। टर्शरी और मेसोजोइक रॉक्स में पॉसिबिलिटी है किसका? कोल का। तो इंडिया में देखो, इंडिया में सबसे पहले 1956 में जो कमीशन बना था पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, है ना, उसके बाद यहाँ पर ऑयल का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। ठीक है। एक्सप्लोरेशन देन प्रोडक्शन, पहले तो खोजेंगे ना उसको कहाँ कहाँ है, फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे। अब स्टार्ट हुआ 1956 में। कैसे हुआ था? एक कमीशन बना था, दैट इज नोन एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कमीशन। ओके, इसके बाद स्टार्ट हो गया। और बाद में इंडियन गवर्नमेंट में क्या किया, 1981 में कोई कंपनी खरीद ली, बर्मा ऑयल कंपनी, उसका शेयर खरीद करके, है ना, एक और कंपनी बनाया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। है ना, तो ये सब चलता रहा। अभी हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलता है पेट्रोलियम। अभी हम लोग मैप में देखें तो देखो, इंडिया में मेजर चार क्षेत्र है, फोर रीजन्स, मेजर रीजन्स ऑफ, सॉरी कोल नहीं, ऑयल प्रोडक्शन। कौन कौन सा रीजन है इंडिया में मेजर रीजन्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन? द फर्स्ट वन इज ब्रह्मपुत्र वैली। सेकंड रीजन इज गुजरात कोस्ट, ये देखा था हमने। थर्ड इज वेस्ट कोस्ट, ऑफशोर रीजन। ऑफशोर का मतलब किनारे से हट के पानी में, ऑनशोर मतलब प्लेन, मतलब कोस्टल एरिया पर, ये कोस्टल एरिया से बाहर, ऑफशोर। फिर ईस्ट कोस्ट, ऑफशोर। ठीक है ना। तो ये सब देखो इसमें, ये चार मेजर रीजन है, मैप में भी देख सकते हो, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो कि कहाँ कहाँ था वो चारों रीजन, जहाँ पे हम लोग कोल प्रोडक्शन देख, सॉरी ऑयल प्रोडक्शन देख रहे थे। तो देखो, ये गुजरात वाला रीजन है, वन।
ये ना ग्रीन कलर का ऑयल फील्ड्स, गुजरात। और ये वेस्ट कोस्ट वाला रीजन है, ये वेस्ट कोस्ट ऑफशोर गुजरात। और उसके बाद इधर है ब्रह्मपुत्रा वैली, पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लो ब्रह्मपुत्रा वैली। और उसके बाद ये ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में इधर भी है, और केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये ईस्ट कोस्ट। तो ये चार रीजन है, ईस्ट कोस्ट में दो है, वन टू, ये थ्री, थ्री ये, और गुजरात, और फाइव ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, नाउ सी। तो कुल मिला के ये चार मेजर रीजन है जहां से हम लोग क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, देखो। तो असम रीजन में अगर देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा रीजन में तो कौन कौन सा है, देखो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा वैली का देखते हैं, उसमें कौन कौन सा रीजन है। ब्रह्मपुत्रा वैली में दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान, मोरान हुगरी जान एक ही है, दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान हुगरी जान ऑयल फील्ड। ठीक है, और मोरान हुगरी जान में पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी मिलता है। ओके, फिर अरुणाचल में कौन कौन सा एरिया बताओ, ब्रह्मपुत्रा वैली में, डू यू नो अबाउट चांगलांग। रीजन्स ऑफ, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जो एरिया है दैट इज, एक तो खारसांग भी है ना, यस सर, खरसंग भी है। खारसांग, मानभूम, ऐसा कोई एरिया है मानभूम। मानबोंग सुना नहीं है सर, खरसंग सुना है। खारसांग सुना है, हाँ सर। अच्छा। तो अरुणाचल प्रदेश में मानभूम लिख लेना, खारसांग, और मामुन भांगा भी है क्या, नहीं सर, पहले बार सुन रहे सुना नहीं है, लिख लो, हैं। मामुन भांगा, मानू, सब एरिया अरुणाचल प्रदेश का है। फिर अमरपुर एंड डाम्बर एरियाज इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी है कुछ। अमरपुर, डाम्बर, इस एरिया में मिलता है। और गुजरात रीजन देखो, दिस इज द ब्रह्मपुत्रा वैली रीजन, फर्स्ट रीजन हो गया, इसमें ये सब प्लेसेस हैं। नेक्स्ट इज गुजरात रीजन। गुजरात में देखो, अभी हम लोग देखा था जो मैप में, गल्फ ऑफ खम्बट, गल्फ ऑफ खम्बट, इसमें आ जाएगा अंकलेश्वर। ओके, फिर और भी है, नावागांव। मेन तो खम्बट और अंकलेश्वर है, ये इतना भी याद रखोगे तो हो जाएगा। नावागांव, कोसांबा, महसाणा, ये सब है, महसाणा, कलोल। ठीक है, ठीक है, एलियाबेट, थोड़ा ये फेमस है, एलियाबेट ऑयल फील्ड, है ना, ये गुजरात कोस्ट से 45 किलोमीटर भावनगर में। तो सेकंड रीजन है, थर्ड इज मुंबई, बॉम्बे हाई जिसको कहते हैं, मुंबई हाई वेस्ट कोस्ट पर है ना।
तो मुंबई हाई से तो निकाला ही जाता है, यहाँ कोई और नाम नहीं है, बस मुंबई हाई लिखना है। ये 176 किलोमीटर अवे, सोचो कितना दूर है कोस्ट से। बिल्कुल कोस्ट पे नहीं है, इसको ऑफशोर कहते हैं। जो कोस्ट से जो दूर प्लेस होता है ना पानी में, ओशन में, दैट इज ऑफशोर। हमारे यहाँ ऑफशोर ऑयल फील्ड्स हैं। ठीक है। 1975 से कंटिन्यूअसली यहाँ से ऑयल निकाला जाता है, बॉम्बे हाई से ना। उसके बाद अब क्या हो गया है, कृष्णा गोदावरी वैली भी आ गया है इसमें। एक तो ईस्ट कोस्ट में जाओगे तो केजी बेसिन इंपॉर्टेंट है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है। तो ये केजी बेसिन अगर तुम देखते हो तो यहाँ से भी, मतलब ये मुंबई हाई के बाद यही है केजी बेसिन एरिया। इसमें कोई नाम नहीं है, बस केजी बेसिन रीजन लिख लो, क्योंकि बेसिन वाला रीजन है कृष्णा गोदावरी का, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर इंडिया का बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी देखते हो तो सबसे बिगेस्ट कौन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सब कंपनी है ना। और ये सब कंपनी का लोकेशन उधर ही गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, मथुरा, जहां जहां रिफाइनरी है। ये कंपनी क्या काम करता है, ऑयल को रिफाइन करने का काम करता है। रिफाइनरी जरूरी नहीं है कोस्टल एरिया पे होगा, रिफाइनरी कोस्टल एरिया से अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बरौनी, बरौनी मेरे ख्याल से बिहार में है ना, बिहार या वेस्ट बंगाल, बरौनी बिहार में ही है। बिहार, बिहार में है सर। बिहार में ना, मथुरा यूपी में। तो ये सब तो अंदर है रिफाइनरी। यहाँ पाइप के थ्रू जाता है क्रूड ऑयल, इस यहाँ से कोस्टल एरिया से निकाल के पाइप के थ्रू रिफाइनरी तक भेजता है। बरौनी, मथुरा, गुवाहाटी, दिग्बोई, सब रिफाइनरी है, मेजर रिफाइनरीज है। पानीपत, बोंगईगांव, पारादीप, उड़ीसा में। ठीक है, ये सब है। तो ये सब थोड़ा सा इतना जरूरी नहीं है सब, लेकिन दो तीन नाम याद रखना कौन कौन सा वो आ गया। नेक्स्ट इज, देखो अब इसको इधर, इधर नीचे किधर गई। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम पब्लिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी कंपनी है जो रिफाइनरी का काम करती है पब्लिक सेक्टर में। सब मैंने बताया ना, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि भाई इसको पब्लिक का वेलफेयर देखना है। प्राइवेट सेक्टर में डालेगा तो पब्लिक का वेलफेयर नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी का वेलफेयर होगा ना। तो एचपीसीएल ये किधर है, बेसिकली ये वर्क करता है मुंबई और विशाखापट्टनम, मुंबई एंड विशाखापट्टनम। इन सब में इंजीनियरिंग का जॉब होता है, बहुत जॉब मिलता है इसमें। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं ना, खासकर माइनिंग, मिनरल्स, मैकेनिकल, वो सब जाता है इधर। उसके बाद एक कंपनी है बीपीसीएल, वो भी पब्लिक सेक्टर में ही है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको देखो तो मुंबई कोची में तुमको मिलेगा। रिलायंस इसके बाद आता है मेजर। रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा, मेनली गुजरात का जामनगर में काम कर रहा है। ठीक है, यही एक प्राइवेट सेक्टर में है, बाकी सब पब्लिक सेक्टर में है। उसके बाद एक मेजर आता है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये पब्लिक सेक्टर में, मैंगलोर का रिफाइनरी में सर्विस देता है। सब मेजर है। इसके बाद बहुत सारा है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि सबसे, देखो इंडिया में सबसे पहला किधर है, तो असम में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। 1901 में
असम में सबसे पहले रिफाइनरी स्टार्ट हुआ था। असम में कहाँ पर है? डिगबोई। ठीक है, सबसे पहला खोला गया। और 50 इयर्स तक सोचो, कंटिन्यूअसली 50 इयर्स तक और कोई भी नहीं था, अकेला यही था। 91 में 1991 में असम में डिगबोई में 50 इयर्स तक काम हुआ। उसके बाद 1954 में ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे इन महाराष्ट्र, बॉम्बे में 1954 में सेकेंड ऑयल रिफाइनरी खोला गया। और आज का टाइम में टोटल 22 ऑयल रिफाइनरीज है इंडिया में। 22 आज का टाइम में, है ना? जिसमें से 17 हो गया पब्लिक सेक्टर में। पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, मैंने दो चार लिख दिया। तो दो हो गया जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का कुछ। और तीन है बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में। 22 हो गया ना, 17 18 19 20, हाँ 22 हो गया। तो इस तरह से काम चल रहा है ना? तो जॉइंट वाला में, जैसे जॉइंट में कौन कौन सा आता है? जैसे ओएनजीसी, ये हो गया गवर्नमेंट का। प्लस कैर्न एनर्जी, सुना है कैर्न? ये दोनों मिलके जॉइंट सेक्टर में आ गए। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं। और ये कहाँ से निकाल रहे हैं? राजस्थान का मंगला एरिया से। मतलब वहां पर तेल निकाल रहा है। राजस्थान डेजर्ट है ना, डेजर्ट में भी तेल होता है। तो वहां से ये पेट्रोलियम निकाल रहा है। वेल, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तेल हो गया, और इसका नेचुरल गैस का देख लो थोड़ा सा, वो छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं। नेचुरल गैस में तुम देखते हो, तो नेचुरल गैस में कुल मिला के ज्यादा कंपनी नहीं है। ओएनजीसी काम कर रहा है, ठीक है। देन गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, गैल, गैल गैल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और एक ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये तीनों कर रहा है। और नेचुरल गैस में पता है क्या, प्राइमरली मीथेन होता है। और मीथेन क्या है? क्लीनेस्ट फ्यूल है। मीथेन इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। और ये क्या करता है? नेचुरल गैस का यूज कहाँ पे? उसका यूज तो तुमको पता ही है, पेट्रोलियम का। नेचुरल गैस का यूज है मेनली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, प्लास्टिक, केमिकल, ये सब में। आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हो रहा है नेचुरल गैस का यूज, है ना? तो तुमको मेजर कंपनी बताइए दिया। ये तीन मेजर कंपनी है। जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है ताप्ती, पन्ना, मुक्ता एंड तवा। जॉइंट वेंचर में काम करने वाला कंपनी है ताप्ती, पन्ना, मुक्ता, के बाद रवा, RAVVA। और अगर देखो तो 70% हमारा जो नेचुरल गैस है वो किधर है? वेस्ट में है। बॉम्बे हाई और गुजरात में 70%। ठीक है। बॉम्बे हाई ऑफशोर है। केजी बेसिन में भी मिलता है, ऑफशोर है, वहां कम मिलता है। 70% तो इधर मिलता है, केजी बेसिन में ऑफशोर है। कावेरी बेसिन में भी है। केजी बेसिन आंध्रा एंड कावेरी बेसिन तमिलनाडु। अभी देखा था ना डायग्राम में, दो था। देखो, ये हो गया आंध्रा वाला और ये हो गया तमिलनाडु। ये कावेरी बेसिन, ये केजी बेसिन। ओके, केजी बेसिन, कावेरी बेसिन। तो इसके बाद एक गैस आता है सीएनजी। तो सीएनजी बहुत डिमांड में है। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो। मीथेन बेस्ड फ्यूल गैस है ये भी।
मीथेन बेस्ड फ्यूल गैस है। कॉम्प्रेस कर दिया जाता है इसको। कॉम्प्रेशन में प्रेशर का रेंज होता है 200 to 950 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कॉम्प्रेशन का ये प्रेशर है। और कॉम्प्रेस करने से वॉल्यूम लेस ऑक्युपाई करता है ना। मतलब अगर तुम कॉम्प्रेस कर दोगे तो ये 1% एरिया में कॉम्प्रेस हो जाएगा। जो भी इसका एरिया था उसका 1% में इतना ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाता है। ओरिजिनल वॉल्यूम से 1% पे आ जाएगा। इको फ्रेंडली गैस है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। कॉस्ट थोड़ा सा कम है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है बाकी फ्यूल से। इको फ्रेंडली भी, यही सब है। देन एक और गैस है सेल गैस। ये भी थोड़ा आजकल न्यूज में रहता है, सेल गैस। ठीक है, सेल गैस क्या है? ये भी मीथेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये करते हैं ऑयल सेल रॉक से। चट्टानों से करते हैं, रॉक से करते हैं। मीथेन बेस्ड, है ना। इसको निकालने का अलग अलग प्रोसेस है। बेसिकली पायरोलाइसिस वगैरह, क्या क्या है, पायरोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सबसे निकालते हैं सेल गैस को इस तरह से। ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव ये भी है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, सीएनजी से भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत सस्ता मिलता है। 50% ये भी इको फ्रेंडली है, 50% लेस CO2 देन अदर फ्यूल्स। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए प्रेफरेबल किया जा रहा है इसको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। ठीक है, सब ध्यान रखना। और सेल गैस को इजीली, पता है, तुम प्लास्टिक में, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लास्टिक में, फर्टिलाइजर्स में, और भी अदर प्रोडक्ट्स में कर सकते हो कन्वर्ट सेल गैस को। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ लेट्स कम टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका बहुत डिमांड है, अभी बहुत जरूरत है नॉन कन्वेंशनल सोर्स का, क्योंकि कन्वेंशनल वाला खत्म हो रहा है सर। अच्छा, इसमें नॉन कन्वेंशनल में सेल गैस भी आ जाएगा, माइंड इट, सेल गैस। और कौन था ये? बस सेल गैस को लिख लेना। सीएनजी भी लिख सकते हो वैसे, इसको भी नॉन कन्वेंशनल में ही कर लो, सीएनजी, सेल गैस। और नॉन कन्वेंशनल में क्या आता है? नॉन कन्वेंशनल जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इको फ्रेंडली भी है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज विंड एनर्जी। Wind is available everywhere, and wind can be harnessed to generate what? Wind power can generate, इलेक्ट्रिसिटी। yes, electricity. तो की फोकस यही, कितना भी विंड पावर, विंड एनर्जी प्रोग्राम जो भी चल रहा है, उसका की फोकस यही है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इंडिया के पास फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड पावर है, फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी। ओके। और ये डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव से सपोर्ट होता है इसका। तो विंड सर्वे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी है, मतलब ये कम से कम 22 स्टेट में चल रहा है, पता है तुम्हें? 22 स्टेट्स अंडर वे है, मतलब सर्वे चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 22 स्टेट में अंडर सर्वे, ये ध्यान रखना। अभी काम इसमें हो सकता है, अभी सर्वे पे। और एक सेंटर स्टैब्लिश कर लिया गया है जिसको कहते हैं विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई। टरबाइन चलाना है, उससे टरबाइन चलाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी होगा। चेन्नई। और तमिलनाडु में भी एक ऐसा है, चेन्नई, वही तमिलनाडु में, तो चेन्नई हो गया, एक ही बात है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के बारे में अगर बात करें,
तो कहते लार्जेस्ट विंड फार्म जो है इंडिया में, वो कैपेसिटी जिसका बहुत ज्यादा है, उसमें एक है। तो एक और बात ध्यान रखना कि जो विंड एनर्जी है, इसमें वर्ल्ड में, एशिया में तो फर्स्ट है इसका प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन वाइज वर्ल्ड में इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे है, और एशिया में फर्स्ट है इंडिया, वर्ल्ड में फिफ्थ है ना। और पूरा जो कैपेसिटी इंडिया का, दैट इज 1966 1.15 मेगावाट, ये कैपेसिटी है इंडिया का, है ना। इंडिया का ये स्टेब्लिश्ड कैपेसिटी है, सोचो। और इसमें से वन फोर्थ जो कैपेसिटी जाता है तमिलनाडु को, यानी तमिलनाडु इज द सेंट्रल प्लेस फॉर विंड पावर। ठीक। और मिनिस्ट्री इसमें कौन सा काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको अलग से स्टैब्लिश किया गया 1992 में इंडिया में। ठीक है। ये नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, विच हैज established in 1992, is the nodal agency for all matters related to नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। और इसके साथ एक और एजेंसी काम करती है, IREDA, ध्यान रखना, इरेडा। तो ये मिनिस्ट्री प्लस इरेडा, ये लोग नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स को देखते हैं। ठीक है, उसको प्रमोट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, उसका सब कुछ काम यही करते हैं, नॉन कन्वेंशनल का। ठीक है, कन्वेंशनल का नहीं, नॉन कन्वेंशनल का। ये मिनिस्ट्री प्लस IRED, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका नाम क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। तो अब देखो, तमिलनाडु सेंट्रल प्लेस है। सेकंड जो मेजर सेंटर है इंडिया में विंड प्रोडक्शन का, वो है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे। ठीक है। एक मिनट, महाराष्ट्र इज द थर्ड, सॉरी, गुजरात छूट गया है, गुजरात रह गया, सेकंड इज गुजरात। तो फर्स्ट इज तमिलनाडु, सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज महाराष्ट्र। ये तीन है जहां पर काम चल रहा है बहुत तेजी से। ठीक है। और जो विंड फार्म्स, जो भी लार्जेस्ट विंड फार्म है, विंड फार्म समझते हो ना, बड़ा बड़ा विंड फार्म लगाया जाता है वहां पे, तो इंडिया में जो है वो है मुपंडल। मैक्सिमम कैपेसिटी है इसका 1500 मेगावाट अकेला कैपेसिटी है तमिलनाडु में, मुपंडल। जैसलमेर 1275 मेगावाट कैपेसिटी अकेले राजस्थान में, राजस्थान में अकेला ही है। देन ब्राह्मण नवेल, ब्रह्म नवेल, ब्राह्मण वेल, ब्राह्मण, एक मिनट, इसका स्पेलिंग सही से करो, ब्राह्मण वेल। ब्राह्मण वेल इज इन with 528 megawatt capacity in Maharashtra. ठीक है। देन ढालगांव, अगेन 278 megawatt capacity in Maharashtra. Then Chakala, Chakala 217 megawatt Maharashtra, and that's it. Next, solar energy देखते हैं। This is about wind energy.
सोलर एनर्जी। ऑब्वियसली सोलर एनर्जी तो तुम जानती हो कि सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किसमें करते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी। यस इलेक्ट्रिकल। दो एनर्जी में करते हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इट इज अबंडेंट इन इंडिया, बहुत है इंडिया में, कमी नहीं है, अबंडेंट इन इंडिया। ओके, व्हाई? ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन ट्रॉपिक। इंडिया किधर लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जहाँ पे डायरेक्ट हीट आता है, ईस्ट समर में तो बहुत आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और यहाँ पे कितना रिसीव होता है मालूम है? अराउंड 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर। एक साल में इतना एनर्जी रिसीव हो सकता है। और अगर इंडिया का सोलर रिच एरिया बोला जाए, कौन कौन सा सोलर रिच एरिया, सोलर रिच एरिया, देन राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। सोलर रिच एरिया, बहुत एनर्जी आता है यहाँ ड्यू टू इट्स लोकेशन। अब इसका भी बहुत सारा रीजन है जो कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, फिलहाल बस याद कर लो, क्योंकि वो सब लोकेशन में पूरा एक्सप्लेनेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी सीधा याद कर लो कि ये सब एरिया में बहुत ज्यादा एनर्जी आता है ना। और इंडिया में क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ज्यादातर रीजन में 300 डेज तक यहाँ पे जो डे होता है वो सनी डे होता है। 300 डेज सनी होगा ज्यादातर पार्ट में इंडिया को। और कम से कम कहते हैं कि भाई किसी भी क्षेत्र में, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में 20 to 50 वॉट, किसी भी एरिया में 20 to 50 मेगावाट का एनर्जी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, किसी भी एरिया में चले जाओ। इसलिए सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं ना हर जगह, उसको टैप करने के लिए, है ना। और इंडिया टॉप 6 कंट्रीज में है, टॉप 6 कंट्री में जिसके पास, है ना, जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने का, वो है इंडिया के पास। पहले नहीं था, अब आ गया है। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होता है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल पहले इंडिया के पास ये नहीं था, अब इंडिया बना सकता है इसको। तो मेनली हम लोग क्या है अब, अ, कुल मिला के फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू हम लोग इंडिया के रूरल एरियाज में भी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक टर्म होता है सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड क्या है? सोलर पॉन्ड बेसिकली कोई पॉन्ड नहीं, एक टेक्निक है। सोलर पॉन्ड एज अ टेक्निक। इसमें क्या है, ये इस टेक्निक के थ्रू हम लोग वास्ट सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट कलेक्ट करते हैं, तो पॉन्ड की तरह काम करता है वो। कलेक्ट करते हैं और उसमें सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं फिर, ठीक है। और सॉल्ट इसलिए ऐड कर देते हैं कि जो बेसिकली पॉन्ड में ही काम होता है, मतलब देखो, पॉन्ड में ही वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो सोलर पॉन्ड का मतलब, एक पॉन्ड सपोज यहाँ पे वास्ट अमाउंट में सोलर एनर्जी को कलेक्ट करना है, तो सन से एनर्जी जो आ रहा है इसमें कलेक्ट करना है, इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। क्यों? ताकि वो इवापोरेट नहीं हो जल्दी, ठीक है। डिस्टर्बेंस एक बार, सोलर एनर्जी कलेक्ट करके यहाँ पे सोलर पॉन्ड है। और अब यहाँ से जो हीट है वो इवापोरेट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा सॉल्ट मिलाने से, ठीक है। और ऐसा सोलर पॉन्ड गुजरात में है, कच्छ रीजन में। और कहीं नहीं है, गुजरात के कच्छ रीजन में सोलर पॉन्ड है, ठीक है। कच्छ या भुज में एक है ऐसा। और अगर पूछा जाए सोलर एनर्जी में सबसे आगे कौन सा कंट्री है, तो जर्मनी लिखना। जर्मनी सबसे आगे ये कंट्री है जो सोलर एनर्जी को यूज करता है, यूज करने में, ठीक है। गुजरात में एक और सोलर पार्क बनाया गया है। गुजरात इज ऑल्सो हैविंग
not only solar pond but solar park also, because of our prime minister who hails from that region. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे सोलर पार्क बनाया जिसका नाम है चिरनका सोलर पार्क। ये गुजरात में ही है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में, है ना। पार्क में 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, चिरनका सोलर पार्क में 600 मेगावाट। तो सब थोड़ा सा ध्यान रखना सोलर एनर्जी को लेके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम कहाँ पर है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम किधर है इंडिया में, पता है? There is a place in Andhra Pradesh, Tirumala. ठीक है, 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी को जिसका नाम था एओनलार, एओनलार फियरो कॉरपोरेशन, है ना, इसको काम दिया, इस कंपनी को क्या काम दिया कि नेशनल सोलर मिशन पर तुम वर्क करो 2011 में। इसको नेशनल सोलर मिशन का काम इसी को सौंप दिया, है ना। कर्नाटका प्रोडक्शन के मामले में रैंक नंबर 1 पर है, ध्यान रखना। प्रोडक्शन मतलब सोलर पावर नहीं, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसको ग्रिड इंटरैक्टिव बनाने में। तो ठीक है, अब ये सब है थोड़ा इन्फॉर्मेशन। देन सबसे जरूरी बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो पॉइंट लिख के खत्म करते हैं इसको। एडवांटेज क्या क्या है सोलर एनर्जी का? इट्स अ क्लीन एनर्जी, रिलायबल एनर्जी, रिलायबल मीन्स एनर्जी कैन बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, और बैटरीज वगैरह में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, तो रिलायबल भी है। फ्री एनर्जी है, कोई कॉस्ट नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कार्बन एमिशन नहीं होता, रिन्यूएबल भी है, मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस फ्री भी है, और लोकेशन भी कंट्री का अच्छा है, हम लोग का है ना, ये सब लिख सकते हो। लोकेशन, क्लाइमेट, इंडिया का सब एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या क्या डाल देना, डिसएडवांटेज में, लार्ज एरिया कवरेज। हाँ, लार्ज एरिया कवरेज, उसके हाई बाद इनिशियल इनिशियल, कॉस्ट। हाँ इनिशियल कॉस्ट हाई लगेगा थोड़ा, शुरू में कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है वो सब फोटोवोल्टाइक सेल वगैरह। इनिशियल स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा है इसका, जो लार्ज बैटरीज में इसको स्टोर करते हैं, बड़े बड़े बैटरी में स्टोरेज कैपेसिटी हो। अच्छा, वेदर डिपेंडेंसी, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, वेदर डिपेंडेंसी, वह सब डिसएडवांटेज है। और इसमें एक मिशन वही याद रखना, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। नेशनल सोलर मिशन 2011 को इस कंपनी को दे दिया गया, लेकिन सोलर मिशन लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था जनवरी 11 2010 में। हाँ, इसका गोल था 100 गीगावाट अचीव करना बाय 2022। वाई? टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जितना ज्यादा सोलर एनर्जी यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोलर एनर्जी। सोलर हो गया, विंड हो गया, देन बायो एनर्जी। ओके, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, बायो एनर्जी। तुम लोग है ना, चला गया था? सर है सर। है सर। चलो, तो कुछ बोलता नहीं, एक ही बंदा बोलता, और क्या है, तुम लोग बाकी लोग किधर गए? हेलो, आर यू देयर?
स्टूडेंट्स, बोलता नहीं है लोग। बायो एनर्जी देखो, तो बायो एनर्जी भी क्या है, मतलब बायो एनर्जी या बायो फ्यूल भी कह सकते हैं इसको। बायो देखो, बायो एनर्जी में बहुत कुछ है। बायो एनर्जी में क्या है, बायो मास आता है, बायो फ्यूल आता है, ठीक है, बायो गैस भी आता है, सब आता है। तो तुम लिख लो बायो एनर्जी और बायोमास। बायो एनर्जी बायोमास क्या है ये, कहाँ से निकालते हैं इसको, डिराइव फ्रॉम बायोमास कंजर्वेशन, ठीक है। बायोमास को कंजर्व करोगे तभी मिलेगा, ठीक है। बायोमास और बायोमास या बायो एनर्जी बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बायोमास कंजर्वेशन। और ये कहाँ से आता है बायोमास कंजर्वेशन, बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जिसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल डंग, यहीं से करते हैं ना यूटिलाइज, ह्यूमन वेस्ट, किचन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सिटी वेस्ट, पूरा शहर का कचरा, सबको मिला के, सबको डिग्रेड करके, इसमें काम कौन करता है, वही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। ये तो सारा रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा था, मैं बताया था। तो ये लोग भी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। यस सर। और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद एक पॉलिसी ध्यान में रखना, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2017, ठीक। तो इस पॉलिसी में क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी जो बायोफ्यूल्स है उसमें क्या किया, इसका एम था 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, ठीक है, किसमें, इन पेट्रोल, पेट्रोल में इतना मिलाओ। और 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल, वेयर, इन डीजल, ठीक है। डीजल ऐसे नहीं होगा, इसको DIESAL, डीजल होगा। तो ये जो पॉलिसी है, मतलब इन डीजल बाई 2030, ये जो मतलब नेशनल पॉलिसी था, इसको 2030 तक ये मिशन था, इतना हम लोग को मिक्स करना है ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब है, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट इज, अच्छा, एक है नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को भी देख लो थोड़ा सा। नेशनल, सब मेंस में आ सकता है भाई, कौन कौन सा पॉलिसी है गवर्नमेंट का जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए होता है। तो नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही सब लिख लेना, थोड़ा थोड़ा भी लिखेगा तो बहुत हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का ना। इसको 1981-82 में स्टार्ट किया गया। और ये बेसिकली प्रोग्राम था रूरल एरिया को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराना, रूरल एरिया में क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करवाना, इसका मेन मिशन ये था। और रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, उसको हटा के जो बायो फर्टिलाइजर उसको यूज करना। तो ये सब इसका मेन प्रोग्राम था नेशनल इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाइड्रो सर। चलो हाइड्रो कर लेते हैं, हाइड्रो एनर्जी। तो देखो, हाइड्रो एनर्जी मतलब हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, दैट इज हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। ये सबसे पावरफुल सोर्स है एनर्जी का, द मोस्ट पावरफुल सोर्स हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। प्लस ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है फ्यूल अवेलेबल कराने में,
कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉन पोल्यूटेड है, इको फ्रेंडली है ना। और ये इसके लिए क्या किया गया, मान लो तुम देख सकते हो, मतलब पोल्यूशन भी नहीं फैलाता। प्लस नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड, सारा काम कौन करता है इसमें? नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D लिख लो। ये बोर्ड क्या करता है? R&D पे काम करता है। और इसका जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है विच एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ, नहीं एक मिनट रुक जाओ, इसको अलग करो। ये तो अलग हो गया, R&D पे काम करता है। दूसरा, नेशनल एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एंड हाइड्रोजन एनर्जी, ये बनारस BHU में काम कर रहा है, दोनों कोलैब में। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च कर रहा है, ये दोनों मिलके किस पर? ग्रीन, नेचुरल ग्रीन एनर्जी। दे आर वर्किंग ऑन नेचुरल ग्रीन एनर्जी। ठीक है, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, implementation of pilot project for हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट, इस पे वर्क कर रहा है दोनों मिलके। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन प्लस हाइड्रोजन एनर्जी कहाँ कर रहा है काम? BHU में। ठीक है, तो क्या, मतलब अभी तक का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये सबको लेके? बहुत पुराना ऑब्जेक्टिव था, अब तो ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो गया बहुत सारा। तो ये ध्यान रखना कि इसको थोड़ा सा अभी, हाइड्रोजन एनर्जी देन न्यूक्लियर एनर्जी, कम टू द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। इसको फिनिश कर दें 5-10 मिनट में, या कल करें फिर? टॉपिक को बताओ तुम लोग, एज यू विश। सर ये न्यूक्लियर एनर्जी और ये हाइड्रो पावर को सर कर दीजिए सर। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो पावर है ना। हाँ सर, ये वाटर डैम्स का। ठीक ठीक, ये करते रहो। तो इसको अभी कर लेते थे। तो न्यूक्लियर एनर्जी लिखो, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी तुमको पता ही है, ये ये भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका मेनली यूज होना है। और जो इंडिया है वो न्यूक्लियर पावर में फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना है पूरा इसको, ध्यान से समझना। फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में। तो थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल सोर्स के बाद इसी का नाम आता है। ठीक है, 2010 में इंडिया ने एक प्लान किया था कि हम लोग न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे, कितना? 63,000 मेगावाट। ठीक है, बाई 2032। दिस वॉज द प्लान ऑफ इंडिया टू अचीव दिस मच ऑफ एनर्जी बाई 2032 थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो एंड नेशनल गोल टू हैव न्यूक्लियर पावर, जो नेशनल गोल था हमारा कि हमें न्यूक्लियर पावर बन जाना है। और पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का 25% है ना, 2050 तक हम लोग अचीव कर लेंगे। तो ये नेशनल गोल था कि वी हैव टू बी न्यूक्लियर पावर बाय प्रोवाइडिंग 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2050, ये भी एक टारगेट था।
ठीक है। और देखो, में जितना भी प्रोजेक्ट है, प्लांट है, वो सब का तो तुमको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। भाई क्या है उसमें, आई मीन टू से, जो भी कहाँ कहाँ पर है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का साइट मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम बस ध्यान रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट्स। तब अब तुमसे पूछेगा नहीं वैसे ज्यादा, कहेगा काकरा पार कल्पकम, ये सब है ना। यस सर। तो ये सब देख लेना, ठीक है। सर इसका अच्छा, और ये फ्यूल्स के बारे में सर, ये यूरेनियम, लिथियम, थोरियम रिजर्व्स। ऐसा साइंस टेक में नहीं हुआ है क्या? चलो मैं बताता हूँ। हाँ साइंस सर। टेक में हुआ नहीं है? नहीं। देखो, नहीं सर। यूरेनियम क्या है ना, देखो यूरेनियम इज वेरी, मतलब इसको कहते हैं हैवी होता है यूरेनियम, हैवी मटेरियल है। एंड टफ भी है थोड़ा, टफ भी होता है यूरेनियम, बहुत हैवी होता है, टफ होता है और रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और इसको हम लोग वाइट कुछ कहते हैं, वाइट मतलब पूरा वाइट कलर का होगा बेसिकली, रेडियो एक्टिव, वाइट एंड वाइट मटेरियल होता है। इसको मेटल ऑफ होप भी कहते हैं, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में यहीं से जो होना होगा होगा, बाकी सारा चीज इतना पावरफुल नहीं होगा जितना ये है ना। इस यूरेनियम का बेसिकली जो यूज होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक मशीन होता है जहाँ पे हम लोग इसके एनर्जी को कंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड वे में, ताकि कोई नुकसान नहीं हो, उसका मैक्सिमम यूज हो जाए। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर को बेसिकली चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि भाई इसको कुल मिला के इसका जो ओर वगैरह है, थोरियम वगैरह, है ना, और वो सब भी तुमको थोड़ा सा इसका ध्यान में रखना होता है कि इसका कौन कौन सा ओर है। तो यूरेनियम जो ओर है उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करेंगे उसको रन करने के लिए, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस क्या, कहीं ना कहीं से इसमें फ्यूल के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं, यूरेनियम फ्यूल के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने होते हैं उन सब जगह पर इसको इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, तुम अगर देखते हो तो मिनरल्स में आ जाता है, यूरेनियम आता है, फिर और कौन कौन सा, थोरियम भी आता है, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, बेरिलियम, लिथियम, ग्रेफाइट, और ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ग्रेफाइट। तो अब तुमको ये भी जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये सब मिलता है, ठीक है। यस सर। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात है कि जो इंडिया है, इंडिया में जैसे सपोज यूरेनियम है, तो ये किधर मिलेगा, देख लो। झारखंड में सिंहभूम, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक जादूगोड़ा माइंस है, जादूगोड़ा, है ना। हाँ और भी सर। स्टेट से यूरेनियम का, झारखंड है साथ में तुम्हारा, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी में भी थोड़ा बहुत मिलता है यूरेनियम। के बाद मेजर रिजर्व में तो तुम देखो कौन कौन सा है, मैं बता दूं। मेजर रिजर्व झारखंड है, ओके, देन छत्तीसगढ़ है, देन उत्तराखंड है, देन यूपी है, और इसके बाद थोड़ा सा राजस्थान में भी मिलेगा, सीकर वाला एरिया में, सीकर, उदयपुर, सब जगह पे यूरेनियम मिलता है। देन थोरियम, अगर थोरियम को देखते हो तो थोरियम मिलेगा इधर तुम्हारा केरला,
ठीक है, केरला। केरला का जो कोल्लम वाला एरिया ना, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डिपॉजिट है कोल्लम में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु थोरियम में सबसे फर्स्ट नंबर केरला, देन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी वगैरह, फिर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम एरिया, देन अगेन झारखंड हजारीबाग के थोरियम का एरिया है सब, देन बेरिलियम। बेरिलियम का जो मैक्सिमम रिजर्व झारखंड, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, जे के, सिक्किम में भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, देन लिथियम, लिथियम कहाँ कहाँ मिलता है? कर्नाटका, बिहार, झारखंड, देन छत्तीसगढ़ भी कर लो, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब एरिया में। ठीक है, तो ये सब एरिया है मिनरल का, ऐसे यूरेनियम और बेरिलियम थोरियम ये सब का। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका इंटीग्रेटेड पॉलिसी पे। अच्छा देखो, इंडिया का जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी है एनर्जी को लेकर, इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर एनर्जी, सारा एनर्जी का, नॉट ओनली एक कोई एनर्जी नहीं। ठीक है, ये पूरा एनर्जी का जो इसका पॉलिसी है उसमें ध्यान रखना, कह रहा है कि यहाँ पे एनर्जी मिक्स होना चाहिए। पहले बात, एनर्जी मिक्स क्या होता है? कन्वेंशनल, डाइवर्सिफाइड। कन्वेंशनल सोर्स। हाँ, ओके आचुंग, ओके ठीक है, इसको बस 5-2 मिनट में सम अप कर दे रहा हूँ। ठीक है, मिक्स, सीआर कन्वेंशनल रिसोर्स प्लस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, दोनों को मिक्स करना है, 50% ये 50%, सो दैट दोनों का क्या होता रहेगा, ऑलमोस्ट यूज होता रहेगा, कोई एक खत्म नहीं होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग पुराना भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा नया भी करेंगे, क्योंकि नया का जो नॉन कन्वेंशनल है इतना ज्यादा टैप नहीं किया ना इंडिया में, अभी पूरा फुली टैप नहीं हुआ है। पर ये तो हमारे पास फुली टैप्ड है, बट इसका क्वांटिटी कम हो रहा है। इसका क्वांटिटी ज्यादा है इंडिया में, पोटेंशियल ज्यादा, बट टैप नहीं किया है। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके काम करना है इंडिया में। ठीक है, और इसमें कोल अभी भी क्या होगा, अब प्राइमरी एनर्जी सोर्स होगा, कोल विल रिमेन एज प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स। नया जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये तुम किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हो कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है पूरा एनर्जी को लेके। तो कोल रिमेन्स एज प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ओके, टिल 2031-32। इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी के थ्रू क्या करना है, रैशनलाइज करना है फ्यूल प्राइसेस को, रैशनलाइज फ्यूल प्राइसेस, ओके, improve energy efficiency. Yes, nanny time into everyone. Yes, last point we are going through. अच्छा, वो जूम का भी वो हो रहा है ना कुछ। ठीक है, इतना कर लो तुम लोग। ऑगमेंट द रोल ऑफ
hydro and nuclear power, and that's it. Hydro and nuclear power, augmentation of. Okay. Then, all the best for today. Have a good day. Meet you tomorrow. Okay. Thank you. Let's end the session. इधर से बंद होगा.